Morning students, Jai Swaminarayan. Welcome back to Atme Green School, Jadeshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 8 maths and our chapter is factorization. So student, today is our new chapter, that is factorization, and in this chapter we learn what do you mean by factorization. And student, you already learned in previous classes about factors. Okay, and when we want to when we go for factors of any number, you are very familiar with prime factors. Okay, so what is prime factors? We know that factors of natural number, when we want to find factors of natural number, so we have easily find, see here 30 को आप क्या लिख सकते हैं 2 into 15 एंड अगेन 15 को आप लिख सकते हैं 3 into 10. Okay, sorry, 3 into 5. Okay, so you can write 2 into 3 into 5. Okay, so this is the factor of 30. So what is the main factors of 30? So you can write 1 2 3 5 6 10 15 and 30 are the factor of 30. Okay, of these हम बोल सकते हैं 2 3 and 5 आर प्राइम फैक्टर्स. अब यहाँ पर 2 3 और 5 ही ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स हैं. 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 10 and 15 and 30 is not a prime number. Okay, understand? So we can say that 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे. इफ़ यू वांट टू टेल अबाउट what is prime factors of 30, so you can write 30 is equal to 2 into 3 into 5. This is the prime factors of 30. Okay, am I right? आप लोग लास्ट क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हैं. Okay, so when we talk about prime factorization of any number, so we can easily factorize that number in prime factors. Now what is prime numbers? So when the number having factor only one and number itself, it's called a prime number. So what is first prime number? So you can say that 2 3 5, then 7 is a prime number because see 2 के फैक्टर्स क्या हैं 1 and 2. 1 into 2 लिख सकते हैं आप. 3 के फैक्टर्स 1 and 3. 5 1 and 5. 7 1 into 7. बट 4 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 and 4 बिकॉज 4 को आप 2 into 2 भी लिख सकते हैं. ओके, सो ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा. वैसे ही अगर 9 की बात करें तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 into 3. सो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, सो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको पता है, ऐसा नंबर जिसके ओनली 1 और नंबर इटसेल्फ ही फैक्टर्स हैं. सो वी कैन से दैट देट आर प्राइम नंबर्स. ओके, अंडरस्टैंड? So student, this way we can factorize any number. Okay, and we have to if we want to prime factors any number, so we can do it. Okay, in 5th 6th 7th standard we already learn about factorization, how to do the factorization, how to do prime factors. Okay, so I hope you all are understand what is prime factorization. Now in this chapter we have learned another concept of factorization, that is factors of algebraic expression. Now algebraic expression से भी आप लोग हमने 12th चैप्टर में पढ़ा था what is algebraic expression, and you all are know about algebraic expression. means algebraic expression क्या होते हैं. अगर हम algebraic expression के बारे में बात करते हैं तो algebraic expression में एक वेरिएबल होता है, the combination of variable and constant is called an algebraic expression. Okay, now let's see. अगर मैं बात करूँ 5xy की, जैसा यहाँ दिया हुआ है, अगर मैं बोलूँ 5xy is an algebraic expression, so when we talk about factorization of this number, so 5xy का factorization क्या होगा. 5 is a prime number. Now x into y, it's a factorization of 5xy. ओके, सो 5xy जो बना है वो किस किस से बना है. इट इज़ एन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 भी लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैक्टर. मतलब 5xy के फैक्टर्स क्या हुए. 1 इज अ फैक्टर्स ऑफ एवरी टर्म. 1 ऐसा नंबर है जो हर एक टर्म का फैक्टर है. Okay, as in the case of natural number, unless it is especially required, we do not show
वन एज अ सेपरेट फैक्टर फॉर एनी टर्म. सो हम उसे ओनली लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू वाई. ओके, अंडरस्टैंड. सो जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम कोई भी नंबर को किस टाइप से लिख सकते हैं, फैक्टर्स में लिख सकते हैं. उसे हम एक्सपांड करके लिख सकते हैं, हम एक्सपांडेड वैल्यू भी बोलते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सपोज हमारे पास कोई और दूसरा नंबर है, जैसे हम बात कर लें 3x इंटू एक्स प्लस 2. अब ये कोई नंबर है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसे फैक्टर्स करना चाहती हूँ, इट कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट. अब ये प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है, मतलब ये हमें दिया हुआ है 3 इंटू एक्स प्लस 2. ओके, अब अगर मैं इसे बताना चाहूँ कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो मैं बोल सकती हूँ इसका फैक्टर है 3x and x plus 2 is the factor of that number. Okay, understand. The factor 3x and x plus 2 are irreducible factor of 3x plus into x plus 2. ओके, मतलब ये फैक्टर्स के अलावा इसके कोई फैक्टर्स और नहीं हो सकते. ओके, सिमिलरली अगर और कोई सा हमारे पास में एक्सप्रेशन है, सपोज अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है 10 इंटू 10x yz, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड. बट यहाँ पर जो 10 है इसके और फैक्टर्स हो सकते हैं, इसे आप और ब्रेक कर सकते हो. क्या लिख सकते हो आप 10 को 2 इंटू 5. नाउ इट्स विल बी द फैक्टर ऑफ दैट नंबर. ओके, अंडरस्टैंड. सो हम किसी भी नंबर को फैक्टर्स मीन्स उसके ब्रेक करके easy way में लिख सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे वी कैन राइट एनी नंबर इन easy way. Now what is factorization? So when we factorize an algebraic expression as we write it as a product of factors. So these factor may be number, algebraic variables और algebraic expression. ये कुछ भी हो सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो एक्सप्रेशन लाइक 3xy, 5x square y, 2x y plus 2 and 5y plus 1 x plus 2 are already in factors form. अगर इनकी बात करें तो ये फैक्टर्स फॉर्म में है. देयर फैक्टर कैन बी जस्ट रीड ऑफ फ्रॉम देम वी आर ऑलरेडी नो. मीन्स हमें क्या करना है 3xy. सो हमें इसको खाली रीड आउट करना है 3x and y. ओके, 5y plus 1 मीन्स इसके फैक्टर्स हुए 5 and y plus 1 और x plus 2. ओके, अंडरस्टैंड. ऑन द अदर हैंड कंसिडर एक्सप्रेशन, अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंसिडर करें 2x plus 4, सो इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं बिकॉज हमें इसमें दिख रहा है इन 2x plus 4. व्हेन वी सी द 2x plus 4, इन दोनों में ही आपको 2 कॉमन 2 दिख रहा है. इसको आप लिख सकते हैं 2x और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2. अब ये 2 जो है वो दोनों में कॉमन है. ओके, सो अगर हम 2 बाहर निकाल लें और मल्टीप्लिकेशन का साइन बाहर निकाल लें तो अंदर बचेगा x plus 2. सो दिस इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे वी कैन फाइंड द फैक्टर्स. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस इज सिस्टमेटिक, मतलब हम इसे सिस्टमेटिक वे में लिख रहे हैं. ओनली हम क्या कर रहे हैं, उसे सिस्टमेटिक वे में लिख रहे हैं. सपोज 2x plus 4 है और 3x plus 3y है. तो 3x plus 3y में हमें 3 कॉमन दिख रहा है तो आप उसे बाहर निकाल लेंगे और लिख देंगे अंदर x plus y. ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ओनली x plus y. ओके, सो आपने क्या किया, ओनली आपने उसे सिस्टमेटिक मेथड में लिख दिया, सिस्टमेटिक वे में लिख दिया. ओके, अंडरस्टैंड. अब नाउ मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स. मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर मीन्स जो कॉमन दिख रहा है वो आप बाहर निकाल लेंगे, जैसे हमने 2x plus 4 में किया था. ओके, 2x plus 4 में हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो हमने लिखा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2. सो यहाँ पर दोनों में 2 हमें कॉमन दिख रहा है, हमने 2 कॉमन निकाला, अंदर बचा हमारे पास ब्रैकेट में x plus 2. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे यू कैन फाइंड द फैक्टर्स ओके ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन. Okay, student. Now
लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल 5xy प्लस 10x। अब इस एग्जाम्पल्स में आप इस एग्जाम्पल में आप हर एक टर्म को पहले तो फैक्टराइज कर लेंगे। 5xy को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू वाई। 10x को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप दोनों को फिर से वैसा कि वैसे ही लिखते हैं, आपकी जो इक्वेशन है उस हिसाब से मीन्स 5xy प्लस 10x, तो 5xy की जगह उसके फैक्टर्स लिख देंगे 5 इंटू एक्स इंटू वाई, एंड सेम हियर 10x की जगह पर आप उसके फैक्टर्स लिखेंगे 5 इंटू एक्स इंटू 2। अब यहाँ पर आपको 5 इंटू एक्स और मल्टीप्लिकेशन का साइन आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप उसे बाहर निकाल लेंगे, दोनों में से कॉमन निकालेंगे। 5x आपने बाहर निकाला तो अंदर बचेगा हमारे पास में y प्लस 2। ओके, सो दिस इज़ माई आंसर। हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। ओके, इससे ज़्यादा ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 1। सो इन एग्जाम्पल नंबर 1 फैक्टराइज करना है हमें 12a² प्लस 15ab²। सो हम अलग अलग टर्म्स का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। पहले 12a² को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को पहले तो हम देखेंगे बिकॉज 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, सो हम 12 को और ब्रेक कर सकते हैं। सो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, जिस बच्चे को इस टाइप से नहीं समझ में आता है वो इस टाइप से भी प्राइम फैक्टर्स कर सकता है। ओके, सो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, एंड 15 के फैक्टर्स भी आप कर लीजिए इस हिसाब से 3 इंटू 5। ओके, सो जो फैक्टर्स हुए उसे आप लिख लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे ओके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर है तो कितनी बार आएगा ए 2 टाइम्स इंटू बी। ओके, वैसे ही सेम बीच नीचे की साइड आएगा 15ab²। 15 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5। नाउ a इंटू बी अब इसे इक्वेशन में लिख देंगे कॉमन निकालने के लिए, बिकॉज हमें दिख रहे हैं इनमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं। 3 कॉमन दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है एंड b कॉमन दिख रहा है। तो जो जो कॉमन दिख रहा है वो हम बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से, दोनों में से। ओके, और जो बचेगा उसे हम एक ब्रैकेट में राइट डाउन करेंगे। जैसे यहाँ बचेगा 2 इंटू 2 इंटू ए फर्स्ट वाली टर्म में, एंड सेकेंड टर्म में बचेगा 5 इंटू बी। ओके, क्योंकि हमें 3a और 3 इंटू ए इंटू बी हमें बाहर निकाल लिया है हमने, तो हमारे पास अंदर बचेगा फर्स्ट टर्म में ओनली 4 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी। ओके, सो दिस इज अवर प्राइम फैक्टर्स, रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पर भी आपको कॉमन निकालना है। 10 के फैक्टर्स करिए, 18 के करिए एंड 14 के करिए। 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 2 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, बट 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, सो you have to first of all you have to complete the prime factorization। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर आप लिखते हैं तो आपका आंसर जो है एग्जैक्ट आता है। अगर आप प्राइम फैक्टर्स नहीं करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। सो यू हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अंडरस्टैंड। सी हियर, जो कॉमन फैक्टर्स है वो कॉमन निकाल लेंगे हम, कॉमन निकाल करके उसका आंसर लिख देंगे। ओके, नाउ ये तो हो गई हमारे कॉमन निकालने के लिए, मीन्स हम जब फैक्टराइज करते हैं फैक्टराइज करते वक्त कॉमन फैक्टर्स हम बाहर निकाल करके उसका आंसर इजीली ढूंढ सकते हैं। ओके, द सेकेंड मेथड, आवर सेकेंड मेथड इज फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। रीग्रुप करना, टर्म्स को रीग्रुप करना मीन्स ग्रुप बना करके भी आप उसके फैक्टर्स कर सकते हैं। ओके, so see the example 2xy plus 2y plus 3x plus 3। ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है। अब इस एक्सप्रेशन में आप इसे दो तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, या तो आप x वाली टर्म्स को एक साथ रख लीजिए, y वाली टर्म को एक साथ रख लीजिए, बट यहाँ पर फर्स्ट वाली टर्म जो दिख रही है वो उसमें x भी है और y भी है। ओके, सेकेंड टर्म में ओनली y है एंड थर्ड टर्म में ओनली x है। ओके, ये तो हुई बात हमारी किसकी, हमने जो बात करी वेरिएबल्स की।
नाउ कोफिशिएंट भी देख करके आप उसको ग्रुप कर सकते हैं। सी फर्स्ट वाले में आपको 2 दिख रहा है, सेकेंड टर्म में भी 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 3 है। तो आप ग्रुप उनके कोफिशिएंट को देख करके भी बना सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ग्रुप आपने बना लिया 2xy प्लस 2y। यहाँ पर तो चूंकि पास पास दिया हुआ है, अगर नहीं है तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाकर उन्हें पास पास लिख सकते हैं। ओके, सो हियर ये क्या हो गया 2xy प्लस 2y। अब आप इसे फिर से वैसे ही फैक्टर्स करेंगे, आप उसे कॉमन आप उनके फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई। ओके, नाउ यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2 इंटू वाई कॉमन दिख रहा है, तो आप 2y कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा हमारे पास में x प्लस 1। ये तो होगी फर्स्ट 2 टर्म्स की बात। ओके, नाउ अनदर 2 टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, वहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, वहाँ पर आपको 3 कॉमन दिख रहा है। तो हमने क्या किया, 3 कॉमन निकाल लिया है और 3 को अंदर क्या बचा x प्लस 1। अब नाउ यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इस स्टेप में फर्स्ट टर्म में भी x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, सेकेंड में भी x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है। ओके, सो व्हेन यू वांट प्रॉपर आंसर, सो यहाँ पर देखिए ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है। अगर आप x प्लस 1 बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा 2y प्लस 3। ओके, 2y प्लस 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, x प्लस 1 इंटू 2y प्लस 3। ओके, अंडरस्टैंड? So this way you can regroup any number expression. Now we can see how to divide any algebraic expression. Okay, so अब डिवीज़न बाय मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। अगर मोनोमियल को ही मोनोमियल से डिवाइड करना है, सपोज हमें अगर मल्टीप्लिकेशन करना होता है 2x इंटू 3x स्क्वायर का, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मीन्स 2 इंटू 3 डेट इज 6 एंड x दोनों ही x हैं, मीन्स वेरिएबल सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 1 दैट इज 3। ओके, सो आवर आंसर इज 6x रेज़्ड टू द पावर 3। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ अगर यहीं पर अगर हमें इसे डिवाइड करना है, सो अगर इफ़ द नंबर इज 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x, so what can you write it? यहाँ पर कोफिशिएंट को कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स चूँकि x की हैं तो वो माइनस हो जाएंगी। सो योर आंसर इज 3x स्क्वायर। ओके, 3 माइनस 1 डेट इज 2। ओके, सो योर आंसर इज 3x स्क्वायर। ओके, अंडरस्टैंड? तो 6x क्यूब, अगर सेम हियर अगर 6x क्यूब को मुझे डिवाइड करना है 3x स्क्वायर से, सो वी कैन राइट हियर 6x क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड हियर 2 अपॉन 1, x राइज टू द पावर 3 माइनस 2, सो यू कैन राइट 2x इज योर आंसर। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है तो आप इस टाइप से उसे सॉल्व कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। ओके, नाउ अगर सी हियर मोनोमियल है, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है, सो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास में नंबर है, इफ़ यू हैव अ नंबर माइनस 20x राइज टू द पावर 4 अपॉन 10x स्क्वायर, तो आप इसे कर सकते हैं माइनस 20 इंटू एक्स कितने टाइम्स हैं, 4 टाइम, अपॉन 10 इंटू नीचे की साइड x कितनी बार है, 2 बार, तो आपके 2x से 2x कट जाएंगे, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, सो योर आंसर इज माइनस 2x स्क्वायर। दैट्स इट। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस व्हेन क्वेश्चन हैविंग डिवीजन बाय मोनोमियल बाय मोनोमियल। ओके, division of a monomial by another monomial. Okay, now if there is the question about division of a polynomial by a monomial, अगर किसी पोलिनोमियल से हमें उस पोलिनोमियल को अगर मोनोमियल से डिवाइड करना है, सो व्हाट कैन वी डू हियर? सी, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4y क्यूब
So our question, if our question is 4y cube plus 5y square plus 6y and you have to divide this full polynomial by 2y. ओके, सो हियर आप करेंगे क्या, यहाँ पर आपके पास में मेथड है, दो मेथड है, मीन्स आप इसमें सबसे पहले तो इसमें से आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, जो आपका फर्स्ट वाला टर्म है उसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, y इज़ कॉमन, सो आपने y बाहर निकाल लिया है, 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2y। अब इसका मतलब क्या हुआ, 4y स्क्वायर का भी डिवीज़न है 2 में, 5y का भी है एंड 6 का भी है, तो आप इसे लिखेंगे 4y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो आपके पास में आ गया आंसर 2y स्क्वायर प्लस 5/2y plus 3 is your answer. Okay, understand? So this way you can solve the question when division of a polynomial by a monomial is given. Okay, understand? Now see, division of an algebraic expression continued, polynomial divided by polynomial. If the question is, अगर आपको डिवाइड करना है पोलिनोमियल को ही अनदर पोलिनोमियल से, सो व्हाट कैन यू डू हियर, सो इसके लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड पर जाना पड़ेगा। सी, सबसे पहले आपके पास में दो अलग अलग टर्म्स हैं, दो अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मीन्स एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है। सो सी हियर 7x स्क्वायर प्लस 14x, सो आप उसको अपॉन x प्लस 2। सो नाउ आपको यहाँ दिख रहा है 7x कॉमन है ऊपर वाली टर्म्स में, तो हमने उसे बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचेगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसल आउट हो गया, सो योर आंसर इज 7x, दैट्स इट। ओके, अंडरस्टैंड? वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो here 44x raised to the power 4 minus 5x cube minus 24x स्क्वायर को आपको डिवाइड करना है 11x इंटू x माइनस 8 से। ओके, सो इसे पहले लिख लेंगे 44, इनमें से सब में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, सो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन 11x x माइनस 8, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, सो ये बचा 4x एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x माइनस 8। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद में अब आप क्या करेंगे, अब आप ऊपर वाला जो नंबर है, ओके, उसे आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, हमें -24 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसको ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाए, माइनस के 5। ओके, सो फर्स्ट we have factorized 24, सो हमें 24 तो चाहिए विथ माइनस साइन, और वही चाहिए हमें -6 भी, सॉरी -5 भी। सो अगर 8 -3 करती हूँ, -8 + 3 तो मेरे पास -5 आ जाएगा, -8 इंटू +3 that is -24, so my factors is -8 and 3। ओके, सो हमारे पास था 4x, यहाँ बचा था 4x
ब्रैकेट में था हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 और उसे हमें डिवाइड करना था x प्लस x माइनस 8 से। ओके, सो हियर 4x हमने अंदर ब्रैकेट वाली टर्म को फैक्टर्स कर लिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8x माइनस 24, ओके, अपॉन x माइनस 8। सो 4x एज इट इज़, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस 3, माइनस 8 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 3 अपॉन x माइनस 8। ओके, अंडरस्टैंड। मैं इसे डिलीट कर रही हूँ, आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम कर रहे हैं आगे वाली टर्म। सो हमारे पास बचेगा 4x x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8 अपॉन x माइनस 8। सो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल आउट हुआ, 4x x प्लस 3 इज योर factorization of that number. Okay, understand? So this way you can solve the questions. Okay, so let's see the questions. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। इट्स वेरी इजी, करने की कोशिश करिए। इन सेकेंड क्वेश्चन you have to divide polynomial by monomial. In third question you have to divide polynomial by polynomial. Okay, so try to complete question number first, second and third, and if you have any doubt tell me on WhatsApp, because tomorrow we have completed 14.3. okay, understand? So complete this chapter by yourself. आपको अपने मन से करने की कोशिश करना है, try it out. okay, so you can understand what method is we can use in the question. okay, have a good day.